All right जी, so continuing from where, from elasticities. हमने सिर्फ इनके फॉर्मूलाज देख लिए थे, हमने देख लिया था क्या इनके साइंस बताते हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या बताता है, डिफरेंट टाइप्स, इनके ग्राफ्स भी देख लिए थे। आगे से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट जी, जिसको ये खुद से करना आ गया उसका इजी सीन है। ये मैंने 3 कर दिए। यू शुड स्टॉप द वीडियो हेयर एंड अटेम्प्ट देम एंड देन यू शुड look at their solutions. All right, G. So PED, as soon as I saw PED, sign negative हो, positive हो, I know it doesn't tell us anything. PED तो सबकी inverse ही होती है. So if there isn't a sign, it means कि उसने लगाया हुआ नहीं है, बाकी the sign is just there. ठीक है? So it is price. Now is it elastic or inelastic? How do I know that? Because the value is less than 1. So this is price inelastic. That means if I increase the price, the quantity demanded will fall and will fall by a smaller, relatively smaller percentage. Then YED. YED बताता है different types of goods. क्या क्या? अब जीरो है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड को परफेक्टली इनलास्टिक कुछ नहीं हो रहा है। किस किस्म का गुड है ये? दिस इज अ नेसेसिटी गुड। इनकम बढ़े या फॉर दैट मैटर गिरे, the demand of this product will not change. Life-changing drugs, life-saving drugs. Changing drugs क्या होती है? Life-changing drugs तो वो वाली drugs होती है। हाँ जी। XCD, XCD कुछ बताता है? XCD हमें पता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बताता है? कॉम्प्लीमेंट्स या सब्स्टिट्यूट्स। नेगेटिव साइन, these are complementary goods. And this is cross elastic or inelastic. The value is less than, greater than 1. That means it's cross elastic. Can I say these are strong complements? क्योंकि एक ही प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे की डिमांड गिरेगी और ज्यादा से गिरेगी। अगेन पीडी, इट इज प्राइस इलास्टिक। किसी टाइप का गुड नहीं बताती। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी और ज्यादा से गिरेगी। Then we have YD, negative YD. What is this? Negative sign income का हमें बताता है this is an inferior good. It is income elastic because the value is greater than 1. And this means if the income increases, the demand of the good will fall, and it will fall by a relatively greater percentage. Then we have XCD with a positive sign. This tells us that these goods are substitutes. It's a positive sign. And they are cross elastic or inelastic. Value 1 से बड़ी है छोटी है? 1 से बड़ी है तो elastic. And these are strong substitutes. If you want to know, if you cannot understand, go back to the previous videos. अच्छा जी. Price of one product increases, the demand for the other will also increase and will increase by a very greater percentage. Then we have unitary price elasticity. Unitary elastic. What does that mean? If the price increases or decreases, the quantity demanded will increase or decrease by the same percentage. Then we have a positive sign. What is this? This is a normal good, and then we realized it was greater than 1. So can I call it superior? क्योंकि पॉजिटिव है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसको कह सकते हैं इनकम इलास्टिक। और इनकम इलास्टिक है तो इसका मतलब ये सुपीरियर गुड है। इसका क्या मतलब? प्राइस सॉरी, इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड इस प्रोडक्ट की बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, रिलेटिवली ज्यादा बढ़ेगी इनकम के परसेंटेज चेंज से। देन एक्सीडी इज 0. व्हाट डज दैट मीन? नॉट रिलेटेड, द टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड। एक की प्राइस बढ़ रही है या गिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन पीडी इज 0. व्हाट इज दैट? व्हाट डज दैट मीन? परफेक्टली इनइलास्टिक के प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन वी हैव अ पॉजिटिव एक्सीडी. व्हाट डज दैट मीन? These are substitutes. Are they cross elastic or cross inelastic? They are cross elastic. What does that mean? Can I say these are strong substitutes?
Why do we have two strong substitutes? मैंने रिपीट कर दिया ना, 2.4 2.4, एक को नेगेटिव कर दूं, लेकिन आप लिख चुके होंगे है ना, फिर रहने दें, इसको स्ट्रॉन्ग ही रहने दें। वो आई मेंट टू पुट अ नेगेटिव साइन, आई डिड नॉट। Price of one increases, the demand of the other will increase and by a much greater percentage. ये क्या है? Positive sign PD. Does it matter? No. This is simply price inelastic. अगर price बढ़ेगी, quantity demanded गिरेगी, लेकिन कम से गिरेगी। Then there is a positive sign. What type of goods are these? These are normal goods. This is income inelastic. प्राइस बढ़ेगी, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी और कम से गिरेगी। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? इफ हु स्कोर्ड 10 on 10? 16 on 16? क्यों, क्या गलती की है? लिखा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। चलें जी, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ पिक्चर, व्हाट डू व्हाटएवर यू वांट, हम आगे जा रहे हैं। चलें जी, स्पीड मारो ना यार, पिक्चर ले, जूम आउट कर लेते हैं, जैसे गो चेक, ज्यादा जूम आउट हो गया। हाँ जी, डू वी गेट दिस? इसको भेज देना। इधर से देख, पहले से आ रहे हो। चलें जी, हेडिंग देनी है तो दे दें, नहीं देनी तो ना दें। एमसीक्यू टिप्स, कुछ भी ना लिखें, बस शुरू करें लिखना। ऑलराइट जी, नोट, on a straight line demand curve, the PED always changes. The PED will fall as we move along the demand curve downwards. As we move along the demand curve downwards. इस बात का क्या मतलब है भाई, ये समझना पड़ेगा। आपने बस याद रखना है, खास तौर पे और एमसीक्यूज, इसका ऐसे क्वेश्चन में इतनी को खास एप्लीकेशन नहीं है। देखिए डिमांड कर्व, सिंपल नॉर्मल डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपने ये चीज याद रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी हमेशा चेंज करती है। इस हिस्से में द इलास्टिसिटी इज इलास्टिक, somewhere in the middle it is unitary, and इस हिस्से में it is inelastic. इधर वैल्यू पीडी की ग्रेटर देन 1 होगी, इधर वैल्यू पीडी की इक्वल टू 1 होगी, इधर वैल्यू पीडी की लेस देन 1। हाँ जी, ये बात समझ आई है? इसको आपने रट लेना है इस बात को। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा हमेशा इलास्टिक होगा, सेंटर में यूनिटरी होगा, नीचे इनइलास्टिक होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। वो माचिस और बिल्डिंग वाली बात याद है? जितनी चीज सस्ती होती है उसकी उतनी डिमांड इनइलास्टिक होती है, कम नहीं होती, इनइलास्टिक होती है, कि प्राइस के साथ रिएक्टिव इतनी नहीं होती उसकी डिमांड। क्यों? माचिस अगर वही बात 2 रुपए से 4 रुपए की हो जाएगी, डजंट रियली मैटर। बिल्डिंग अगर 1% भी इंक्रीज आएगा और अरबों की बिल्डिंग है तो वो अरबों में चेंज आएगा या करोड़ों में आएगा। So it makes a lot of difference. Do we get it? अगली बात,
The PED, yes, remains constant and equal to 1 at all points on a unitary demand curve. इस बात का क्या मतलब है? यूनिटरी डिमांड कर्व में ऐसा सीन नहीं है। यूनिटरी डिमांड कर्व में पीडी इधर भी इक्वल टू 1 है, इधर भी इक्वल टू 1 है, इधर भी इक्वल टू 1। डू वी गेट दिस? ये चीजें याद रहेंगी। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर याद रखना है इलास्टिसिटी हमेशा चेंज होती है, ऊपर वाले हिस्से में इलास्टिक, सेंटर में यूनिटरी, नीचे इन इलास्टिक। यूनिटरी डिमांड कर्व में क्या रहती है? इक्वल टू 1 रहती है। आ जाइए अगली हेडिंग देते हैं, रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंडिचर। पॉइंट हेडिंग दे दें, रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंडिचर एंड पीईडी। हाँ जी, व्हाट इज रेवेन्यू अकाउंटिंग वाले? टोटल सेल्स रिसीट्स। टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बता दें। यस, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला। टोटल एक्सपेंडिचर भी यही चीज है। नहीं, टोटल की बात हो रही है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। लें जी, 30 रुपए की एक छल्ली है, $30 की, और आज कितनी छल्लियां बेची हैं मैंने? 3। कैन यू टेल मी व्हाट इज माई टोटल रेवेन्यू? $90। डू वी गेट दिस? व्हाट इज माई टोटल रेवेन्यू? अब अगर मैं कहूं कि माई कॉस्ट वॉज $50, देन व्हाट इज माई प्रॉफिट? कॉस्ट अगर मेरी $50 है तो मेरा प्रॉफिट होगा $40। बात समझ आई है? डिफरेंस समझ आया? रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स, टोटल कलेक्शन। कॉस्ट उसमें से माइनस नहीं करनी। डू वी गेट इट? टोटल सेल्स क्या है? रूब्रिक्स की टोटल सेल किस तरह निकलेगी? आप सबकी फी इस मंथ की ऐड कर दें तो इस मंथ की रेवेन्यू आ जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? चलें आ जाए आगे, बनाएं एक डिमांड कर्व। दिस इज प्राइस, लिखो लिखो, वो किधर जाते हैं? कोई बात नहीं, जागो, इधर जाएं। ये T1 Q1, इस पॉइंट को ए कह दो, लेट्स सपोज 5। हाँ जी, बल्कि 3 ही कर दो। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू वेट, एक ही बात है। आप अगर रेवेन्यू हम इस प्रोडक्ट का निकालें तो ये प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, ऐसा ही है।
तो आपने क्या किया, आपने ये इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल लिया। बात समझ आइए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्या हो, मैथ्स नहीं नहीं, इतनी मैथ्स नहीं है, क्या हो, रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही लोगे ना। ये देखो ना, ये मुश्किल है। मुझे बताओ एक यूनिट कितने का है, बिक रहा है 30 का, और यूनिट कितने बिके हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया 30 × 3 कितना आ गया। तो और ये इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकला है। आज के बाद कह दूं कि ये जो रेक्टेंगल है ये क्या होगा, ये रेवेन्यू होगा, या फिर यही एक्सपेंडिचर होगा। किस तरह निकाला, 30 × 3। आसान है मुश्किल, ये तो ये डब्बा जो आइंदा बना करेगा, कैन आई से दिस इज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, कैन आई से दैट। आज के बाद हसन हुसैन ये डब्बा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। वही है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया आपने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ P1A Q1, ये समझ आइए बात। नाम लेते हैं ना ये P1, वो ट्राइंगल ABC नहीं कहते थे, वो वाला। ठीक है, इज द रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंडिचर एंड इनकम भी कह दूं। ये प्रॉफिट वाली इनकम नहीं है, रेवेन्यू वाली इनकम है। तो आज के बाद एक और चीज हमने सीख ली, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म। अब्दुलरहमान, फर्म ने कितने पैसे कमाए हैं, 90। ये एक इसने खरीदा, एक इसने खरीदा, एक इसने खरीदा, इन तीनों का मिला के खर्चा कितना हो गया, 90। टोटल डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हो, टोटल पूछ रहा हूं, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स। एक ही चीज नहीं होती, कह सकता हूं इज इक्वल टू इनकम। तो आज के बाद इन तीनों को एक ही चीज कह दूं तो मसला तो नहीं है। वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो इनकम जब कहेगा वो इसी का, हमने कॉस्ट को कभी जिक्र भी नहीं करना। आसान है मुश्किल, इतनी सी बात है, आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। कंज्यूमर्स की कहां से आ गई, रेवेन्यू को इनकम कहते हैं बस। बस रेवेन्यू, और ये बताने के लिए कि रेवेन्यू को इनकम कहते हैं इसलिए दोबारा लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर में अगर पूछ ले कहीं। डू वी अंडरस्टैंड दिस, ये तीनों चीजें इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। द डब्बा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, द बॉक्स इज ऑलवेज रेवेन्यू। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी हमेशा चेंज होती है, नीचे आएंगे तो गिरेगी, यूनिटरी पे कांस्टेंट रहती है। चलें जी, दोबारा आ जाए, वही रेवेन्यू के अंदर ही अभी इधर ले लें प्राइस, इधर ले लें क्वांटिटी डिमांडेड, इधर ले लें टोटल रेवेन्यू। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशनशिप है, वही चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस जितनी और प्राइस जितनी कम होगी, टोटल रेवेन्यू। इससे आसान इनवर्स डेटा कोई हो नहीं सकता। कोई भी इनवर्स डेटा ले लें, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ठीक हो गया अब्दुलरमान। एक चीज अगर मैं बेच रहा हूं एट द रेट ऑफ 10, कितने पैसे कमाए टोटल, एक चीज क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है और किस रेट पे बेच रहा हूं, कितने पैसे कमाए, बस। दो चीजें बेची एट द रेट ऑफ 9, तीन चीजें। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस हम कम कर रहे हैं और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, रेवेन्यू को क्या हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। 7 4 फिर अब देखो ना, अब क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर है, क्वालिटी और होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कौन सा,
कुछ ऑब्जर्व किया आपने? टोटल रेवेन्यू इनिशियली बढ़ रहा है इनिशियली, और फिर एक टाइम पे आके एक लिमिट पे आके मैक्स आउट हो रहा है और फिर कम होना शुरू हो गया। दो ग्राफ, इन दोनों ग्राफ्स का ऊपर नीचे आना जरूरी है। बनाएं। अभी अभी सेंस बनाएगा, अभी मैं बताता हूं, पहले ग्राफ बनाए फिर मैं अभी देखते हैं। वही है उसका, ये दोनों का। उस पर अभी हम नहीं आए, वो और चीज। हाँ जी, टोटल रेवेन्यू ऑब्जर्व करो, डेटा देखो, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच रहा है और फिर कम हो रहा है। बना दूं? कोई ऐसी शक्ल बन रही है, आपका ख्याल है? मेक सेंस? ये मैंने बना दिया टोटल रेवेन्यू। किन दो क्वांटिटीज पे मैक्सिमम है, जरा मुझे बता सकते हैं? मैं किन दो क्वांटिटीज पे मैक्सिमम? 5 एंड नीचे ले जाए, वो भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। वही बहुत आसान है, क्या टेंशन? सही नहीं हो रहा। डरना नहीं है, डरना नहीं है, तो बहुत आसान है, ये तो हलवा है हलवा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले भी ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं, प्राइस और क्वांटिटी को देखें, इन दोनों चीजों को, डिमांड कर्व बन सकता है इनवर्स, वही इनवर्स रिलेशनशिप है जो आज तक हम बनाते आए हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। बीच में जो है वो डिमांड ज्यादा, उसको छोड़ें, डिमांड को मुझे सिर्फ ये बताएं, प्राइस अगर मैं कम करना शुरू, टोयोटा वालों को मैं फोन करता हूं कि प्राइस गिराओगे तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्राइस कम करनी शुरू की, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है और उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर। फर्ज करें अभी 70 लाख की है, 70 लाख, अभी बिक रही है 10, कितने पैसे कमा रहे हैं? 7 करोड़। करते 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 अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस गिरा देंगे, उन्होंने एक टोयोटा करोला कर दी 10 रुपए, अज्यूम करो, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लोग पागल हो जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी बढ़ेगी। 10 रुपए की कर दी टोयोटा की, यस। और कितनी बिक रही है एक महीने में? अभी कितनी बिक रही थी? 10, अब 50,000 बिक रही। 50,000 भी क्या, 50 लाख बिक रही। कितना टोटल रेवेन्यू हुआ? 5 करोड़। वो अभी 7 गाड़ियां बेच के बेहतर है या 50 लाख बेच के बेहतर है? 7 गाड़ियां, समझ आई? अगर एक प्राइस हम कम करते रहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी ज्यादा होती रहेगी, और ज्यादा ही हुई है। टोयोटा की क्वांटिटी डिमांडेड गिरी नहीं, 10 रुपए की कर दी, 50 लाख गाड़ी पर मंथ बिक रही है। लेकिन होगा क्या? रेवेन्यू एक सर्टेन अमाउंट तक मैक्स आउट होके फिर उसके बाद कम होगा कि नहीं होगा अब्दुलरमान? देखेंगे किसके लिए बेनिफिशियल है, उस पर बाद में जाएंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप? समझ आया? ठीक है। अभी हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू और डिमांड का रिलेशनशिप देख रहे हैं। इस ग्राफ के ऊपर मैं कल वापस आऊंगा और इस पे इलास्टिसिटी भी शो करूंगा, वो हम बाद में छोड़ रहे। फिलहाल इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। चल क्या भाईजान आएगा अभी, और हम देखेंगे और आप ऐसे पहचानेंगे। ठीक है। वो क्या करेगा फनकारी, सिर्फ टोटल रेवेन्यू का ग्राफ दे देगा। वो पूछेगा इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। ठीक है। हमें एक और चीज पता है, क्या? इधर देखें, हमने अभी पढ़ा है कि इस वाले पार्ट में इलास्टिसिटी क्या होती है, पीडी इलास्टिक। इधर क्या होती है सेंटर में, और इधर क्या होती है? ये ऑब्जर्वेशन लिख लें अभी। व्हेन total revenue is increasing, when total revenue is increasing, PED is elastic. When total revenue is decreasing, PED is inelastic.
when total revenue is maximum, PED is unitary. इसमें है ना इसके टोटल किसमें? इस ग्राफ में, क्योंकि इसमें रेवेन्यू एंड पे है ना, तो आते हैं उस बात पे, आते हैं फिलहाल आप अभी ये देखें, उस बात पे मैं कल आऊंगा। रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप, ये हमने सिर्फ टोटल रेवेन्यू के साथ अभी इसका रिलेशनशिप देखा। इज दिस क्लियर? चलें अगली चीज पे आ जाए। लिख लिया सबने? नहीं, अभी करें। चलेंगे, रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, रेंज ऑफ इलास्टिसिटी। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ टॉपिक, अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ आए नहीं, क्योंकि ये ए लेवल है ना, इसलिए फर्क है। टू कैलकुलेट द रेंज of elasticity, calculate the data once for an increase and then again for a decrease. मतलब ये है कि प्राइस थी 10, क्वांटिटी डिमांडेड थी 50, प्राइस बढ़ के होगी 12, क्वांटिटी डिमांडेड इज 45। मुझे रेंज निकाल के दें, रेंज निकाल के देंगे मुझे जल्दी से। हरी अप कैलकुलेट द रेंज। मैं करूं? सिंपल, पहले आप सिंपल पीडी तो निकाल के देना मुझे एक दफा। प्राइस इंक्रीज हुई है, मुझे पीडी निकाल के दें। क्या करूं मुझे बताएं? व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताएं जी। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 45 minus old is 50 divided by old is 50 into 100, old divided by new price is 12 minus 10 over 10 into 100। हाँ जी, क्या आ रही है? ऊपर आ गया 5 5 10, कितना होता है? ऊपर 10% आ गया, नेगेटिव 10%। नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 20%। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? -0.5। ये तो एक वैल्यू आ गई। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रेंज? पढ़े इलास्टिसिटी, पढ़ें जरा इसको, पढ़ें जो लिखा है। एक दफा इंक्रीज का कैलकुलेट करें, एक दफा डिक्रीज का रेंज करें, फिर आप उल्टा करें, रिवर्स करें, दोबारा बताएं। यस, अब अज्यूम करें कि अब प्राइस गिर रही है। अब अज्यूम करें कि प्राइस, नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड? 50 minus new minus old 45 divided by old 45 into 100, whole divided by न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस क्या है? -12 over 12 into 100। हाँ जी, 100 divided by 9 is 11.1, whole divided by 12 6, 100 divided by 6 is नहीं 2, हाँ 100 divided by 6 is 16 point something। ये माइनस हुआ ना 2,
उसको फिर डिवाइड किया तो 2/12 आ गया, तो 1/6 हो गया। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो यार। तो क्या वैल्यू आ रही है? -0 पॉइंट। कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ पीडी? -0.6 से -0.8। कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछता है इसलिए टाइम लगाया। रेंज का पता चल जाता है कि आपको ओवरऑल एक वैल्यू नहीं होती इलास्टिसिटी की, एक रेंज के दरमियान में फॉल करे, उससे आपको ये पता चलता है। कल इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट।